हेलो 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 हेलो। आप सुन रहे हैं? नहीं, आप मुझे देख रहे हैं। आप देख रहे हैं राज की बात। हेलो, गुड आफ्टरनून, नमस्कार, आदाब। मेरा नाम है आरजे राज। आप देख रहे हैं 1137th एपिसोड ऑफ नागपुर मोस्ट हैपनिंग फेसबुक लाइव शो, जिसका नाम है राज की बात विमेन ऑफ द ईयर के साथ। धन्यवाद करता हूं मैं पारेख ब्रदर्स जूलर्स का, जो है टाइटल स्पॉन्सर, प्रेजेंटिंग स्पॉन्सर ऑफ राज की बात विमेन ऑफ द ईयर in association with Pehnava Boutique. A big thank you to Cuts, the salon, the most luxurious and exclusive salon in the Nagpur city, Cuts, and also a big thank you to Antra Multi Services, which is helping a lot of women out there with Mudra loans and a lot of loans which can make their business grow. Also Hamburide by Nidhi Rathe. हमारी आज की मेहमान जो है वो एक एक्टिविस्ट है, वो एक विचार रखने वाली महिला है। वो हर्बल और ऑर्गेनिक प्रोडक्ट से जुड़ी भी हैं। शी इज ऑल्सो अ होम मेकर, शी इज अ माउंट कार्मेल गर्ल, शी इज अ lady with a great smile and always brings positivity with whoever she meets. Please welcome Pooja Panchmatia ma'am. Hello and namaskar. Hello, namaste Raj. कैसी हैं आप? I'm doing well, Raj. Ma'am, is pink your favorite color? No, nothing like that. But yeah. It's a great day to start in a pink. Yes. Okay. Ma'am, सबसे पहले you are a Mount Carmel girl, you're a Nagpur girl. Yes. How does that feel? Oh, I'm very happy being a Nagpurian. Mm-hmm. Throughout my life, especially, Mm-hmm. I feel the place very comfortable. I've been born and brought up, and it's not all that laid back. Also, in terms of fashion or other things, Mm-hmm. but it's not as fast as Bombay to spoil us. Mm-hmm. Mm-hmm. So I like the place. मैम, पूजा जेजानी जब माउंट कार्मेल स्कूल में पढ़ती थी और जब जाती, मतलब आप, आई होप यू रिमेम्बर पूजा जेजानी। Yes, I do. यू डू? ओके। सो मैम, तब के नागपुर में और अब के नागपुर में क्या फर्क देखते हैं? A lot of infrastructure development, Mm-hmm. but more of a concrete jungle Mm-hmm. and traffic Mm-hmm. and more unsafe. Unsafe? Yes. How do you say that, ma'am? Earlier when I was very young, I used to cycle to school also, and it was like my parents were not scared, or nor were I. So, but today if I have to let my children go and cycle, Mm-hmm. I'm a bit scared. The traffic is bad, Mm-hmm. and I don't find the city roads and people that safe that they can just move around freely. But ma'am, do you think that with time Nagpur has become really crowded? Do you think with time Nagpur has been a little gone, discipline issues with driving, with parking, with? I wouldn't compare it, but I think I have seen some discipline issues a little better Mm-hmm. in some few years. Mm-hmm. Earlier, we didn't have discipline issues of parking and all so much because the crowd and the traffic was less. Mm-hmm. But today, at least in my area, in front of my house and everything, Mm-hmm. I really find the cops coming and taking care and action about it. So definitely some discipline has improved Mm-hmm. wherever at least I'm concerned with things. Okay. So I find that difference for sure. But ma'am, Even you always had a problem with noise pollution. yes, And you had I a do. मतलब आपने एक बहुत लंबी लड़ाई भी लड़ी है नॉइज पोल्यूशन के लिए। Yes. कैसे उसके बारे में बताएंगे? Okay, so my house was going to get renovated, and we had shifted temporarily in a apartment. Mm-hmm. So around our apartment, there were many other apartments coming up, Mm-hmm. and they used to start work mercilessly at 5 in the morning. Oh my god. So the children, the elder people, and the sick people, and all of us, even if we are not, the working people, Mm-hmm. we also need enough rest, I feel. जी. If we cannot get the rest, then it's difficult for us to perform well in the whole day. So these people, when I requested them, they said the law goes like morning, with the morning rise of sun, Mhm. they can start the work. Mm-hmm. Once the law is like that, Mhm. I cannot do anything about it unless and until I change the law. Right, ma'am. So I happened to file a PIL, Mm-hmm.
and requested, and the government was supportive. They took up the case and had to go a long way with people around and the lawyers and everybody to get things done. But finally, I got the success in getting the law changed. सो मैम आपको लगता है कि ये एक आम आदमी की कहीं ना कहीं एक जिम्मेदारी है कि जब भी वो कुछ न्यूसेंस होता हुआ देखे, कुछ गलत होता हुआ देखे, तो वो कोर्ट का दरवाजा खटखटाए या एडमिनिस्ट्रेशन के पास पहुंचे? आपको ऐसा लगता है? बिल्कुल लगता है, क्योंकि सबके लिए ये करना बहुत इजी नहीं होता है. थोड़ा करेज चाहिए रहता है. द पर्सन शुड बी अ लिटिल मोर एक्सट्रोवर्ट ऑल्सो. जनरली हम देखते हैं हमारे आजू बाजू करेज नहीं होता है लोगों को अपनी आवाज उठाने के लिए. बट अगर हम सब एक एक चीज भी, छोटी छोटी चीज भी अगर लेंगे और रिक्वेस्ट करेंगे या हमारा उस चीज पे अवेयरनेस बढ़ाएंगे, तो वी ऑल कैन मेक द प्लेस वेरी वेल टू लिव विद. मैम, यू ऑल्सो वर्कड एज अ एक्टिविस्ट for a few NGOs. You also work in hand to hand with Chitnavis Center for children's education. Yes. How was the experience, ma'am? Very nice. Very nice. That was the platform where I could change my views, my thought processes, and what is needed for the society, the more of civil awareness. So I myself learned a lot there, and I'm very thankful to Chitnavis always. So ma'am, क्या चीजें महसूस हुई, क्या बदलाव क्या आया? बदलाव ये है कि ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन है, बट वो हर चीज हर जगह नहीं कर पाती है. तो एज अ civilian, we should make the government aware that we need this change here at a particular place and get things done from there. But हम ही बोलते हैं कि नहीं है, कि ठीक है कोई करेगा ही नहीं, तो हम नेगेटिव्स पास करके और उन लोगों को वैसा ही बना रहे हैं. पर अगर हम 4 बार उनके पास जाएंगे कि नहीं आप ये करिए, तो आज के इसमें RTI, PIL ये सब के साथ में इट इज गुड एंड इजी दैट वी कैन डू इट. आगे जा सकती है. तो ये जो शब्द हैं RTI, PIL, ये करने से पहले पता थे आपको कि ऐसी चीजें होती हैं? मैंने चिटनविस से ही सीखा है ये सब चीजें. Okay. यस, आई बहुत पहले नहीं पता था, बट चिटनविस में मुझे वर्ड्स पता था, बट चिटनविस में उसमें प्रोसीजर समझ में आना और किस तरह से वर्क करता है, काफी कुछ पता चला. सो मैम, आपकी अगर मैं वापस से उस दौर में जाऊं जब आपका विवाह हुआ, देयर इज ऑल्सो अ स्टोरी टू इट, एंड व्हाट वाज दैट? I had a love marriage, and my generation would have been in one of the last generations where love marriage was accepted difficultly. In 90s. In 99, I got married. Okay, so in the 90s, yes. 90s case but में. still at that time. So समीर के बोल, कुमार सानू और कविता कृष्णमूर्ति की आवाज, ये सब आपके दिल के करीब है? एकदम. Okay. और जोर जोर से म्यूजिक बजाना भी एक पार्ट रहता था हमारा, वो एक्सप्रेस करने के लिए. बिल्कुल, बिल्कुल. एक दूसरे को फीलिंग्स वगैरह. तो मैम, ये ब्लैंक कॉल्स, क्रैंक कॉल्स, ये सब हुए? जी, ये सब छुप छुप के डेट करना, ये सब हुआ है? ये कम हुआ, बिकॉज बोथ ऑफ अस यूज्ड टू स्टे. योर हस्बैंड्स नेम मैम? ही इज अमित पंचमतिया. अमित पंचमतिया. ओके. या सो मेरे हस्बैंड की पीछे वाली खिड़की और मेरे सामने वाली खिड़की वाज द सेम. ओके, तो ही यूज्ड टू सिंग दिस, मेरे सामने वाली खिड़की में एक चार. नो, अदर्स यूज्ड टू सिंग फॉर अस. ओके. या. सो कब पहली बार वो क्लिक हुआ मैम? हाउ डिड इट गो लाइक? Okay, you can say it was a childhood attraction, like, and we didn't start talking very soon, but we used to admire and look at each other probably. And in first year, around 12th first year, we must have started talking slowly. So that was more on phone only, or with a common friend circle in the ground and common places. But मैम, एक मारवाड़ी लड़की के लिए कितना डिफिकल्ट होता है गुजराती लड़के से शादी करना?
वो ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होता नहीं होता है बिकॉज मारवाड़ी इसमें ज्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं जी गुजराती से. हम्म सो मेरे लिए इट वाज डेफिनेटली इजियर. easier. Yes. And ma'am, then you came and then you got married and then we started a family. You and Amit sir, you started a family and then you have 2 kids. Yes. And what are their names? My son's name is Josh. He's 17 years old, and my daughter's name is Alika. She's 14. Mm-hmm. So, and I'm blessed to have my family and my kids. My husband is also one of the best husbands I could have, and my children, I could not ask anything more than that. They're Ma'am- the best kids. Ma'am, then you also got into a business which is into organic and health related products. And you started a brand name also. What's the name of that? Actually, I did not start a brand name. I'm a franchise. So I have taken up this franchise, Adrish Zero Waste Organic Store. And I really loved the concept. And this happened to me during COVID times. So once on Facebook, I was going through them and I surveyed out things, I saw other things. And I really liked these people who have started the brand, and I found them very genuine and nice, down to earth people. And I was into organic farming also. Rather, I am into organic farming also. So I feel that that's the need of the hour. And I grow basic home stuff for myself, my family, and my friends around, and always think that they could benefit out of that. Plus, then I got this store opportunity where I thought I could help in a larger number and facilitate things in Nagpur, which I was feeling is not present in Nagpur. मैम आई नो थोड़ा सा सिली सवाल होगा ये कि ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स और जो प्रोडक्ट्स मार्केट में मिलते हैं उसमें मैम फर्क क्या है? केमिकल्स नहीं है इसीलिए ऑर्गेनिक कहते हैं? पूरा केमिकल्स नहीं है, मॉडिफाइड नहीं है, पेस्टिसाइड्स यूज किया हुआ नहीं है, बिकॉज दीज आर काइंड ऑफ स्लो पॉइजनिंग थिंग्स. एंड आई फील जो इतने कॉम्प्लिकेटेड डिजीजेस और सब चीज आजकल इतना बढ़ गया है सब फैमिली में, कैंसर एंड एवरीथिंग. सो कहीं ना कहीं ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली बहुत हार्म करते हैं प्रोडक्ट्स. तो मैम आपके मन में कभी ये सवाल आया कि अगर ये इतनी हार्म करते हैं तो मैम सरकार इसे बेचने की आजादी कैसे देती है? बिल्कुल आता है, बिल्कुल आता है. पर जहां तक मुझे थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन और नॉलेज है, ये कुछ लंदन ब्रिटेन की कंपनीज आई, उन्होंने अपने पेस्टिसाइड्स और ये फर्टिलाइजर्स वगैरह को प्रमोट करने के लिए इंडिया में बहुत रिसेंटली ही चालू किया हुआ है. आफ्टर वी वर बॉर्न, लाइक इट्स नॉट वेरी एज ओल्ड प्रैक्टिस. तो हमारे सामने सामने ये रेवोल्यूशन लेकर आके लोगों ने इस चीज को पूरा स्पॉइल कर दिया है. When we were children, we used to have definitely the healthy food. But कुछ 30-35 years से ही ये चेंज हो गई है प्रैक्टिसेस. और शायद इसीलिए मैम हम देखते हैं कि आज का युवा जल्दी बीमार पड़ता है कंपेरेटिवली जो आपने या मैंने जो अपने बचपन में खाया है, जो जिस किस्म की सब्जियां, फल, दूध, मक्खन या ड्राई फ्रूट्स खाएं. बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, क्योंकि आपका न्यूट्रिएंट वैल्यू बहुत कम हो गया है हाइब्रिड करने से. फर्टिलाइजर्स डाल के उसकी ग्रोथ और क्वांटिटी बढ़ा लेते हैं. तो जो चीज एक फल में आती है वो चीज 10 फल में डिस्ट्रीब्यूट हो रही है. तो डेफिनेटली न्यूट्रिएंट वैल्यू कम हो जाता है उसका. फर्टिलाइजर्स ये अपने पेस्टिसाइड्स वगैरह डालने से आप पेस्टिसाइड्स का इंटेक बढ़ा लिए हैं अपनी बॉडी में डायरेक्टली, तो जो न्यूट्रिटिव वैल्यू है वो और उसके कारण भी कम होता है. तो आपके अंदर बॉडी में जो इंटेक जा रहा है एक नॉर्मल फूड का, जो पहले उसकी क्वालिटी रहती थी और जो अब है उसमें बहुत फर्क आ गया है. सो मैम क्या समझती हैं, क्या सोचती हैं आने वाला वक्त जो है वो किस किस्म का, क्या भारत को हेल्दी रखेगा? ये ग्रीन रेवोल्यूशन, ऑर्गेनिक फूड्स, प्रोडक्ट्स अभी बहुत लोगों ने अडेप्ट किया है. अच्छे अच्छे लोगों ने, एजुकेटेड लोगों ने अपना काम छोड़ के ऑर्गेनिक फार्मिंग में कदम रखा है ताकि ये चीज को वो हेल्प कर सके, ग्रीन रेवोल्यूशन ला सके. एंड बाहर के देशों में भी ये बहुत है. अभी सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ये है कि ये थोड़ा सा दूसरी चीजों से एक्सपेंसिव होता है
इसीलिए इतनी जल्दी कैचअप नहीं हुआ है. बट आई एम श्योर पीपल विल वर्क एंड my friends and me like us should do more for these things. बट मैम जैसे जो प्रोडक्ट्स की वैल्यू है, अब अदृश्य में कोई ऐसी चीज, कोई ऐसा प्रोडक्ट बताइए जो अदृश्य जीरो में मिलता है, जिसकी वैल्यू मार्केट के किसी प्रोडक्ट से बहुत ज्यादा है, मतलब एक एग्जाम्पल स्वरूप. ऑयल्स भी हैं, आप बोल सकते हैं. दाल है. दाल मतलब तूर दाल. तूर दाल. तो तूर दाल मार्केट में अगर फॉर एग्जाम्पल 10 रुपए की है, तो आपके यहाँ कितनी की होगी? मार्केट में 10 की है तो मेरे यहाँ 40 की होगी. 30 रुपए का फर्क है. हाँ. तो बहुत बड़ा फर्क है मैम. इसलिए बट मेरे यहाँ की इसमें तो घर बिक जाएंगे. नहीं. मेरे यहाँ की अगर तुअर दाल आप लेंगे तो आपको 3 कटोरी लेने की जरूरत नहीं है, आधी कटोरी में हो जाता है. ओके. ये डिफरेंस आता है ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स में. बट ये मैंने आपको हायर साइड वाला प्रोडक्ट बताया है. हर प्रोडक्ट में इतना फर्क नहीं है. बट मैंने सिर्फ आपको 1 या 2 प्रोडक्ट का जो हायर रेंज का है वो बताया है हायर साइड में. बट अदरवाइज द अदर प्रोडक्ट्स आर क्वाइट कंपेरेबल एंड कॉम्पिटिटिव इन रेट्स. पर आप पुश नहीं करती है मैम बहुत ज्यादा किसी को कि आप खरीदो ही, आपके लिए अच्छा है, कभी ऐसा करती है? नहीं करती. हमारे प्रोडक्ट्स थोड़े से एक्सपेंसिव साइड होने के कारण आप किसी को एकदम से पुश नहीं कर सकते हैं. बट जैसे मेरे आजू बाजू जो लोग हैं जिनको मैं मेरे फार्मिंग से दे सकती हूँ, मैं उनको लो कॉस्ट पे एकदम देती हूँ. और जैसे मेरे यहाँ का जो स्टाफ है वो मेरे से ही तुअर दाल पूरा लेके जाता है, राइस लेके जाता है. आई गिव देम एट द मोस्ट सब्सिडाइज रेट. वो भी रेट्स में इसलिए चार्ज करती हूँ ताकि उनको उस चीज की थोड़ी वैल्यू रहे. तो आप उनको ऐसा नहीं बोलती मैं तुमको तुम्हारी उम्र बढ़ा रही हूँ, तुम्हारी सैलरी कम कर दो? नहीं, मैं वो सब नहीं बोलती हूँ. पर जो भी है मुझे ऐसा लगता है कि मेरे आजू बाजू जो है उनको भी थोड़ा फायदा रहे. मैम इस किस्म की जो थॉट है, इस किस्म की जो मानसिकता है कि ना ही सिर्फ खुद के लिए बट दूसरों के लिए भी करना, क्या आपको ऐसा लगता है कि सब में आनी चाहिए व्हेन इट कम्स टू गिविंग बैक टू द सोसाइटी? हाँ, बिल्कुल आनी चाहिए, क्योंकि मैं बहुत चाहती हूँ कि मैं ऐसा करूँ. और मेरे से जितना बन सके, मैं 100% नहीं हूँ, पर मैं जितना अपने आप को रोज चेंज कर सकूं इस बारे में मैं ट्राई करती हूँ कि चेंज करूँ. और मेरे लिए मेरे मॉरल्स और वैल्यूज बहुत हाई हैं, जो आज के इसमें एनवायरनमेंट में लोगों के इसमें बहुत शालो हो गया है. थोड़ा सा मॉरल्स और वैल्यूज अच्छे से रखेंगे और सेल्फिशली हम काम करेंगे तो वी कैन मेक दिस प्लेस अ मच बेटर वर्ल्ड टू लिव विथ. मैम जब आप मॉरल्स की बात करती हैं, वैल्यूज की बात जब आप कहती हैं, तो मैम कौन सी ऐसी चीजें जो देखकर आपको कहीं ना कहीं दुख होता है, जो आप युवाओं में देखती हैं या प्रेजेंट जनरेशन के आपके जनरेशन के लोगों को देखती हैं? क्या आपको ऐसा लगता है कि अरे ऐसा क्यों? लोग रैट रेस में है, जेलसी फील करते हैं, बहुत कॉम्पिटिटिव फील करते हैं. वो अपने स्ट्रेंथ्स नहीं पहचानते हैं और दूसरों के स्ट्रेंथ्स पे ध्यान देते हैं. दूसरों के पास क्या है जी, फिर उसको मैनिपुलेट करते हैं, उसके लिए झूठ बोलते हैं. एंड सबको सब जगह होना है, पर क्वालिटी नहीं देखते, क्वांटिटी देखते हैं हर चीज में जी. तो जेलसी और कॉम्पिटिटिवनेस, ये सब चीजों को थोड़ा सा हम संभाल के रखें तो हम बहुत अच्छे हो सकते हैं. ये मैम बहुत डिफिकल्ट काम है, आपको तो पता है. बहुत डिफिकल्ट काम है शायद लोगों के लिए, मेरे लिए शायद नहीं है. मैं फॉलो करना चाहती हूँ और करती हूँ जी, बहुत स्ट्रिक्टली. और हाँ, जिस तरह से मैं लोगों को आजू बाजू देखती हूँ उन लोगों के लिए शायद बहुत डिफिकल्ट है और वो नहीं कर पाते हैं. मैम मैरिज इज एन इंस्टीट्यूशन. हस्बैंड अपनी वाइफ से रोज कुछ ना कुछ सीखता है और वाइफ भी कभी कभार हस्बैंड से कुछ ना कुछ सीख लेती है. आपने अमित सर से क्या सीखा? बिफोर मैरिज में बहुत डिफरेंट थी. सभी चीजों की अवेयरनेस एंड डेप्थ ऑफ थिंग्स एंड ऑल बहुत कम थी, क्योंकि आई लिव्ड मोर लाइक जस्ट अ नॉर्मल सिंपल स्टूडेंट एंड टीनेज गर्ल एंड एवरीथिंग लाइक दैट. बट अमित से और अमित की फैमिली से आके बहुत सारा डेप्थ, रिलेशन, बॉन्डिंग्स, फैमिली बॉन्डिंग्स एंड
बहुत सारे वैल्यूज भी सीखे हैं एंड गुजराती भी सीखी है? गुजराती भी सीखी है। तो ये कैसे सीखी? क्लासेस लगाई थी आपने? नहीं, क्लासेस नहीं लगाई थी, बट अमित मेरे को आंसर ही नहीं करते थे जब तक मैं उनको गुजराती में जवाब नहीं दूं। अच्छा, तो सवाल जब तक गुजराती में ना पूछे जब तक वो जवाब नहीं देते? नहीं, कैसी भी बोलो पर बोलो गुजराती में। और टूटी फूटी बोलते बोलते आज आप बोलना शुरू कर गई। यस, शायद अमित से ज्यादा अच्छी गुजराती बोलूंगी। क्या बात है। मैम, अब क्योंकि सोसाइटी के साथ जुड़कर काम किया, परिवार को भी यू हैव ग्रोन अप चिल्ड्रन नाउ, आपने परिवार को भी उतना ही सुरक्षित रखा और सब कुछ अपनी जिम्मेदारियां बराबर निभाई। कौन सी ऐसी चीज है जो पलट कर देखती हैं खुद के लिए जो आपको ऐसा लगता है कि ये उस समय नहीं की क्योंकि उस समय या जिम्मेदारी थी या परिवार उस समय जरूरी था, जो करना चाहती हैं, क्या करना चाहती हैं? हाँ, टू लिव माई चिल्ड्रंस चाइल्डहुड अगेन, because I think I was just working and doing things for them and everyone else more, rather than just sitting and enjoying them more. So this is one thing I would love to live Go back in time and do it. Yes, with them. मैम, कुछ चीजों को लेकर मैं चाहता हूँ कि आप अपना पर्सपेक्टिव दें। मैम, वक्त के साथ समाज में काफी बदलाव आए, इसमें से एक बदलाव आया कि गर्ल्स डोंट वांट टू गेट मैरिड। तो क्या ये किस किस्म का साइन है? व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? ये बहुत कॉन्ट्रडिक्टिंग क्वेश्चन भी हो जाएगा। मेरे पर्सनल व्यूज और आज की जो जरूरत है वो भी बहुत अलग होगी। हम लोगों के टाइम पे growing a family, getting into a institution of marriage and everything was the thing. And आज के इसमें proving yourself, making your establishment for a girl and living your own life is more important. So is it wrong? No, it's not wrong. So that is what I said, कि this is quite a contradicting thing. Yes. So I would say कि दोनों चीजें अपनी अपनी जगह है। अगर आप बैलेंस करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है कभी कभी, बट अपने पार्टनर के साथ देन अगर आप इस चीज को बहुत अच्छे से पुट अप कर लो, क्लैरिफाई कर लो एंड अपने अपने गोल सेट कर लो, तो शुड बी अ नाइस वे ऑफ टेकिंग टुडेज एंड इसके पहले की चीजों को साथ में लेके चलना। So like the marriage institution also and your career also. Ma'am, single mother is or divorce rate are increasing. Yes. जब ऐसे किसी के बारे में सुनती हैं कि डिवोर्स हुआ है या the lady is now a single mother and she's not planning to get married again, what do you think about that? See, if the lady is a single mother and doesn't want to get married again, it's absolutely okay. But if the lady wants to get married, that is also absolutely okay. Because it should be the person's choice. If she hasn't had an abusive marriage, definitely she can make a choice what she wants. And self-sustainable hai, she doesn't need anybody. It's absolutely good. It's a nice freedom also. And if she is still wanting to be in a family, taking care of the kids, and she feels the marriage is necessary for her children, from a father's point of view and everything, she should go ahead. Because nowadays divorce has become very common and natural. But I feel कि people should keep in mind कि just leaving one marriage and getting into another is not the solution. Making those adjustments are going to be there always with the first marriage or the second marriage. You have to be open to that. Then only you will be able to go ahead. Ma'am, your thoughts on child adoption? I really like it. I really like it because I feel we are growing as a population very high. So, and some uneducated people, you can say illiterate people, not educated but illiterate people, they give birth to children and they leave them. At least we are educated. If we can do that, we can adopt a child and give one person a nice living and education. It's a very great thought. I'm always in for it. मैम, मेरे आखिरी के दो सवाल, एक ये कि now
the family is more like sorted. Family responsibilities are more like sorted now. You've been as an activist, you've been doing a lot of work when it comes to, helping children with education and everything. अभी नॉइज पोल्यूशन हो गया, अभी बहुत जल्दी साउंड पोल्यूशन और बहुत सारी चीजों पे, एयर पोल्यूशन पे भी आप काम करेंगे, ऐसा विश्वास है हमको. आप अदृश्य के साथ जुड़कर आप अब फूड से रिलेटेड या हेल्थ से रिलेटेड भी काम कर रही हैं विद ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स. मैम, व्हाट नेक्स्ट? व्हाट्स द बिग ड्रीम? Yes, I do have a very big dream. Maybe it's a very big dream for myself because if I can achieve, it's a big dream. So I definitely want to go in the villages and adopt a village and do whatever best I can do for them. So that's my goal when my children are more settled. So, and whenever I can do it, live with them, teach them the organic farming, the hygiene, the sanitation part, and how they can stand for themselves and get their things done. So whatever best I can do, time would tell me and situation would tell me whatever is required for them at that time, and would like to go do that thing. मैम, मैं लास्ट क्वेश्चन, अगर इस जिंदगी की सुनहरी किताब लिखी गई, उस किताब के एक सुनहरे पन्ने पर आपका नाम लिखा गया, पूजा जेजानी पंचमतिया जी, मैम, उसके नीचे वो कौन सा कोट, वो कौन सा थॉट लिखा रहना चाहिए जिसके बाद लोग जब भी उसे पढ़ें या जब भी वो थॉट उनके पास आए तो आपको याद करें? Let's do something for the society. Responsibility. Let's have our responsibilities towards societies. Something in that. Something of that line. Yes. जिम्मेदार बनिए, हिंदी में जिम्मेदार बनिए, है ना? जी. मैम, आई थिंक योर जर्नी इज सो इंस्पायरिंग. आई मीन, फ्रॉम मेरी सामने वाली खिड़की में to this complete thought of going out and helping children with education, working for an NGO, then helping people with starting a project which is into a store into organic products, helping people with good quality eatables which can help them give age to them. I think this complete thought, and then your big dream that going in villages and working, I think this all is more like a recipe of which makes you a great product yourself and a great human being. आप ऐसे हमें इंस्पायर करती रहे, ऐसे इन्फ्लुएंस करती रहे. आप जो करना चाहती हैं, ईश्वर आपको पूरी शक्ति दे कि आप वो काम करें, और आप ऐसी ही मैम पिंकी रहें जैसी आप हैं, और आप और अमित सर और आपका परिवार ऐसे ही ब्लेस्ड रहे. आपने अपना वक्त दिया, आपने हमसे बात करी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद. Thank you so much. I'm also happy being motivated from you all. Thank you so much. Thank you, ma'am. Thank you. राज की बात में आज मुलाकात हुई पूजा पंचमतिया जी से. बात बड़ी सुनहरी बातें हुई, जहां पर ना ही सिर्फ किस किस्म की जिंदगी हम जी रहे हैं उसके ऊपर में बहुत सारे सवाल उठाता है ये इंटरव्यू, लेकिन जिम्मेदारी भी सिखाता है ये इंटरव्यू. अगर आप इस इंटरव्यू को दोबारा देखें, जब भी देखें, इस इंटरव्यू को जरूर शेयर करें ताकि ये उन तक जाए जिनके पास ये पहुंचना चाहिए, क्योंकि आज भी ऐसी कई सारी महिलाएं हैं जो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं है, जो अपने थॉट से इंडिपेंडेंट नहीं है, और अभी भी 4 दीवारों में कैद है अपनी, और ना ही सिर्फ घर के दीवारों में, लेकिन अपने दिमाग को भी उन्होंने कैद करके रखा है इस थॉट को लेकर कि शायद बस यही हमारी लाइफ है. लाइफ बहुत बड़ी है, बहुत खूबसूरत है. आप उसको बनाना चाहें तो आप बना सकते हैं. आपसे फिर होगी मुलाकात इन राज की बात. तब तक आप अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें, स्वच्छ रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें, व्यस्त रहें, परिवार के साथ एक अच्छा वक्त बिताएं. और अगर आपके परिवार में एक बेटी है जो आप जब तेज आवाज करते हैं तो आपको आके बोलती है कि प्लीज वॉल्यूम कम करें, क्योंकि आप की जो जिन चीजों को आप आवाज करें उससे आपका थोड़ा फायदा जरूर हो सकता है, लेकिन ऐसे कई हैं जिनका नुकसान हो सकता है. तो समझिए, वो पूजा पंचमतिया बन रही है. जिंदा रहें. जय हिंद.